Welcome to this session. In this session, we are going to discuss the syllabus as prescribed by HP Technique Shisha Board. As per syllabus is concerned, we have elective subject, and under elective subject, we are going to study this welding technology under N17 scheme. Okay, and this subject is introduced in fifth semester, and we are throughout this semester we will go to discuss the details of this welding technology, the technologies used in welding and various welding methods. Okay, and about the syllabus, we have introduction to this welding, introduction to welding. First chapter is about introduction to welding classifications, and second chapter is about the type of welding, that is gas welding, and the details of this gas welding here, how the method of gas welding works, and what are the equipments used in gas welding. Then we have third chapter about arc welding. Okay, how arc welding works, what are the equipments, what are the basics regarding arc welding. And arc welding, as welding are mostly used in common workshops, in mechanic shops. They are most common to use them. Next we have this resistance welding. Resistance welding, 4 chapters about resistance welding. We will going to discuss the different types of resistance welding like projection welding, butt welding, upset, and all that. Okay, the 5th chapter is about other welding processes, which these welding processes are mostly used in industries, not as a general using, like submerged arc welding, ultrasonic, electron beam welding, laser beam welding. They somewhat require some automation, so these are mostly used in industries. Okay, next we have the joining process. Not we cannot say this is welding process, so we call it as a joining process, the brazing. Okay, so how brazing works, what are the basics behind this brazing. Then we have 7th chapter, soldering. And about this 8th chapter, we have some elements, some particular metals which are we will study that how they are welded, like cast iron, alloy steel, tool steel, because they require some certain procedure. They require certain procedure, so we will going to study that procedure in 8th chapter. Then we have 9th chapter, and that is our last chapter. We will discuss about welding defects and testing methods, how we going to find the defects, and how we going to have this destructive test, how we are going to test in whether weld has been properly made or not. Okay, so this is all about the syllabus as prescribed by board, and we are going to follow the board syllabus. Okay, so let's start our session with the this first chapter. And before going to this first chapter, introduction to welding, the point here we have to discuss here is why we need to this study this welding technology. Okay, since as a diploma holder, mechanical engineer is required to look after the fabrication and repair work and maintenance of operation. For this knowledge and skills in the area of welding technology is knowledge is required to impart to them. Okay, since diploma holders the work in the industries, they have to look after various fabrication work, various joining process work. Okay, so they have to impart their knowledge so that they can best utilize their knowledge, so the welding can be done effectively, joining can be done effectively, and with minimum resources and maximum profitability. Okay, सो जैसे डिप्लोमा होल्डर हमारे इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं तो नंबर ऑफ़ फैब्रिकेशन वर्क होता है वहाँ पर, काफ़ी जॉइनिंग प्रोसेसेस रहती हैं, तो वहाँ पर अब एक बेस्ट जो रेगुलर वर्किंग वेल्डिंग है उस वो तो आपका है ही है, साथ में अगर कोई और वेल्डिंग प्रोसेस भी हमें यूज़ करना पड़े सो उसकी एक लुक आफ्टर के लिए डिप्लोमा होल्डर की ज़रूरत होती है, एंड एज्यूम किया जाता है कि वो डिप्लोमा होल्डर को वेल्डिंग आती है, वेल्डिंग के बेसिक आते हैं. सो नई प्रोसेसेस होती हैं वो समझनी पड़ती है, अगर कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, सो वो तभी पता होगा अगर बेसिक वेल्डिंग के पता होगा. सो देयरफॉर सब्जेक्ट एम्स टू डेवलप द नॉलेज एंड स्किल in the area of welding technique, both conventional and modern. Other than this gas welding, arc welding, it is assumed that diploma holder have good knowledge of other welding processes also, that are like electron beam welding, ultrasonic welding. They know about that, so that they can best utilize his knowledge, his or her knowledge, for better operation. Okay, so let's start with our first topic, that is introduction to welding. Okay,
So let's go to the first topic, introduction to welding. What is this introduction to welding? First we need to know the definition of this welding. What is this welding? Okay, what is this welding? Welding is a fabrication process where two or more parts are fused together by means of heat, pressure or both, forming a joint as the part cool. Welding is usually used on metal and thermoplastic. So welding क्या है? वेल्डिंग में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है. ज्वाइन कैसे किया जाएगा? वन मेथड इज़ कि उसे मेल्ट किया जाए. मेल्ट करके बाय यूजिंग ऑफ हीट इट कैन बी मेल्टेड. और अगर मेल्ट नहीं करना है, बाय यूजिंग ऑफ हीट इट इज़ समवट इट इज़ उसे ऐसी पोजीशन में लाया जाता है जो वहाँ पर वो थोड़ा सा आपका लूज़ हो सके, है ना. फिर हम उस पर दूसरे हमारे पास है कि हम उस पर प्रेशर लगा भी सकते हैं, नहीं भी, मीन्स टू से. और फिर हम जब उसे कूल करते हैं तो वो आपका ज्वाइनिंग बन जाती है. फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं आर्क वेल्डिंग की. आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि बाय यूजिंग आर्क से हीट डेवलप होती है. बाय यूज़ ऑफ दैट हीट द बेस मेटल इज़ मेल्टेड. बेस मेटल क्या होगा? आपका मेल्ट होगा. बेस मेटल मेल्ट होगा, कुछ फिलर मेटल उसमें डाला जाएगा. सो मीन्स टू से बाय यूजिंग ऑफ हीट इट इज़ मेल्टेड. देन क्या होगा? फिर वो अपॉन कूलिंग इट विल गेट सॉलिडिफाइड और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी. बट इन दिस केस नो प्रेशर इज़ यूज्ड. इस केस में कोई प्रेशर यूज़ नहीं हुआ. सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है कि हम उसे थोड़ा, जैसे हम कोल्ड वर्किंग में करते हैं, जैसे आपने कोल्ड स्मिथ वर्किंग में देखा होगा, आपके स्मिथ यूज़ करते हैं, आपके लोहार यूज़ करते हैं. हम उसे थोड़ा गर्म करेंगे. गर्म करके हम उसे ऐसे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर लाएंगे, ऐसे टेम्परेचर पर लाएंगे जहाँ वो थोड़ा गर्म हो जाए, जिसके वो पूरी तरह मेल्ट ना हो, बट वो थोड़ा ऐसी कंडीशन में आ जाए कि वो इजीली शेप चेंज कर सके. ऐसे हम गर्म करके करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड हाई टेम्परेचर और हॉट वर्किंग. ओके, सो हम उसे मेल्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम हॉट वर्किंग कर रहे हैं थोड़े एलिवेटेड टेम्परेचर में. फिर हम उसमें ज्वाइनिंग, दो मटेरियल्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे और उसके ऊपर हम क्या करें? हैमरिंग करते हैं. जैसे आपने लोहार के पास देखा होगा, हैमरिंग करते हैं. ठीक है, हैमरिंग करते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है? ज्वाइन हो जाता है, जैसे लोहार को होता है. सो दैट्स वाई दिस डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग इंक्लूड्स दैट वेल्डिंग इज अ ज्वाइनिंग प्रोसेस और ज्वाइनिंग प्रोसेस वेयर टू और मोर पार्ट्स आर fused together by use of heat or pressure, either heat or pressure or both, forming a joint as a part cool. ठंडा होके वो क्या आपका joint बन जाएगा. ओके, फॉर दिस एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस डायग्राम. यहाँ पर आपका वेल्डिंग हुआ है, यहाँ पर ये पार्ट दोनों ज्वाइन हुए हैं. देन अनदर डायग्राम शोज दैट वेल्डिंग इज बीइंग डन हियर. ओके, सो दिस इज वेल्डिंग. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज हाउ वेल्डिंग वर्क्स. Okay, like I said, welding is nothing but joining of metals. And under this joining we have this heat करते हैं हम ताकि वो मेल्ट हो जाए. मेल्ट होके वो मटेरियल मेल्टिंग स्टेज में आता है. फिर हम उसे शील्डिंग करते हैं. शील्डिंग मीन्स कि अगर उस स्पेस को जो मेल्ट हुआ है, अगर वो उसे हम शील्ड ना करें नोबल गैसेस से, अगर हम उसे शील्डिंग मीन्स कवर कर देना एक ऐसे एटमॉस्फेयर से जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आ सके. एटमॉस्फेयर में जैसे हमारा मॉइस्चर होता है, ऑक्सीजन होता है, अदरवाइज़ वो कांटेक्ट बना के ऑक्साइड बना देगा या मॉइस्चर इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो वी नीड टू शील्ड दैट पार्ट. ओके, सो वेल्डिंग में सबसे पहले का हीटिंग होगी, फिर शील्डिंग होगी, फिर फिलिंग मेटल डाला जाता है, फिलर मेटल डाला जाता है. बस यही प्रोसेस. फिर क्या होता है? उसे कूलिंग कर देंगे. देन द वेल्डिंग इज बीन डन. यही आपका क्या है? वेल्डिंग है इन ब्रॉडर term. Okay, so how does welding work? This is the how welding works. Like and it is as opposed to brazing and soldering which does not melt the base metal. As देखो, as brazing and soldering में base metal melt नहीं होता, we do not call it as a welding process. Okay, it is called joining process basically. Brazing and soldering is called joining process, not welding process. And and as this definition here is, as opposed to brazing and soldering which does not melt the base metal, welding is a high heat process which melt the base metal, typically with the addition of filler metal. Then filler metal is added. Okay, then heat at high temperature causes a weld pool. हाई टेम्परेचर बनने से वहाँ पर वेल्ड पूल बन जाएगा, एक मॉल्टन पूल बन जाएगा, और वेल्ड पूल ऑफ मॉल्टन मटेरियल विच कूल्स टू फॉर्म ज्वाइन विच कैन बी स्ट्रॉन्गर देन द पेरेंट मेटल. प्रेशर कैन ऑल्सो बी यूज्ड produce a weld either alongside of heat itself. So that's, as I said, that
welding is just what? It is just a joining process which may use heat or pressure or both, and upon cooling it solidifies and weld is obtained. Okay, so that is how welding works. Okay, so just you have to remember, welding means heating, shielding and filling. Okay, हीटिंग, शील्डिंग एंड फिलिंग. हीट करेंगे उससे मेल्ट होगा, फिर साइड बाय साइड हम शील्डिंग करेंगे और फिलिंग करेंगे. ओके, प्रेशर भी अप्लाइड करते हैं, सो हीट हम इतना, फिर उस केस में हम हीट इतना नहीं करेंगे वो मेल्ट हो जाए, जस्ट हम उसे ऐसे स्टेज में लाएंगे कि वो जस्ट हॉट वर्किंग हो जाए, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में जाए, एक ऐसे टेम्परेचर में जाए जहाँ पर वो इजीली शेप चेंज कर सके, जैसे हम एलिवेटेड टेम्परेचर्स में करते हैं. लाइक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस. नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, कि हमारी वेल्डिंग प्रोसेस होती है, अब वो डिफरेंट नंबर ऑफ वेल्डिंग मेथड्स हैं, अब उनको ग्रुपिंग किया है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ गैस वेल्डिंग. First one is gas welding. Under this gas welding we have oxy-acetylene welding, air acetylene welding, oxy-hydrogen welding. Means जैसे आपको बर्निंग, जैसे आपके गैस होती है, गैस बर्न होती है, तो एक उसमें फ्यूल होता है, एक ऑक्सीजन होता है. ऑक्सीजन तो इज़ रिक्वायर्ड सो दैट फ्यूल कैन बर्न. सो आपका जो फ्यूल है वो अलग अलग हो सकता है, लाइक इट कैन बी एसिटिलीन, इट कैन बी हाइड्रोजन. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ रेजिस्टेंस वेल्डिंग. रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है कि एज यू नो रेजिस्टेंस, जैसे आपके बल्ब होते हैं आपके टंगस्टन, तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, उसमें काफ़ी रेजिस्टिविटी होती है. सो ड्यू टू दैट रेजिस्टिविटी वो क्या हाई टेम्परेचर ऑब्टेन होता है, एंड हाई टेम्परेचर होने से वो हीटअप होता है, और दैट हाई टेम्परेचर कैन ऑल्सो लीड टू मेल्टिंग. तो वही कॉन्सेप्ट लिया है इसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, कि बाय यूजिंग रेजिस्टेंस द मटेरियल इज मेल्टेड एट सम सर्टेन पॉइंट्स. ये कुछ एक पॉइंट्स पे मेल्ट किया जाता है बाय यूजिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग. रेजिस्टेंस. ओके, सो अंडर दिस रेजिस्टेंस वेल्डिंग वी हैव number of types: butt welding, spot welding, seam welding, projection welding. Then we have this arc welding. Arc welding is what? Arc welding में एक arc, जैसे ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज की वजह से, हाई वोल्टेज की वजह से स्पार्क जनरेट होता है, जैसे आपका स्पार्क प्लग में होता है, आपका लाइटर्स में होता है, वैसे एक स्पार्क डेवलप होता है. ड्यू टू दैट स्पार्क, जैसे आपकी बिजली कड़कती है तो स्पार्किंग होती है, तो वैसे ही आपका क्या होता है, एक स्पार्क डेवलप होता है. ड्यू टू दैट स्पार्क इट हैज़ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड ड्यू टू दैट एनर्जी मटेरियल गेट्स हीटेड, एंड ड्यू टू दैट हीटिंग it get melted. Okay, so that is how it melts the base metal and also filler metal और base metal कैसे होगा, उस आर्क की वजह से मेल्ट होगा. अब वो हमारे डिफरेंट टाइप्स की हैं. ओके, लाइक दिस कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, MIG and TIG welding, commonly known as MIG and TIG. Okay, next is newer welding, this electron beam welding and laser beam welding. Okay, these are some different techniques, and these are not commonly used in workshops, small workshops. They are usually used in industries. Okay, electron beam welding use electron gun. अब गन कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक गन से आपके आते हैं और मटेरियल के ऊपर लगते हैं, और वहाँ से हीटअप वो मटेरियल हीटअप होता है और मेल्ट होता है, और आपका वेल्डिंग होती है. ओके, सो सिमिलरली इन लेज़र ऑल्सो द मैकेनिज्म, द कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट बिटवीन दिस, इवन दो दोनों इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग यूजेस दिस electrons, and in laser it uses photons. Okay, so थोड़ा इसमें हम in upcoming topic we will go into details. Okay, so for time being we just have to have this little knowledge of this classification. Okay, so last one is solid state welding. सो अब जितने भी आपने पहले चार किए, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, न्यूअर वेल्डिंग, अब जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करें, इसमें हमने थोड़ा प्रेशर यूज़ किया है, अलॉन्ग विद हीट प्रेशर इज यूज्ड हियर. ओके, इन द सेम वेज व्हाट इज़ द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, इसमें क्या करते हैं हम, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में भी थोड़ा हम हीट अप करते हैं, उसे ऐसे स्टेज में लाते हैं ताकि उसे गर्म करते हैं, हम ऐसे स्टेज में लाते हैं ताकि वो इजीली अपना शेप चेंज कर ले, और हम वेल्डिंग करते हैं. ओके, वी हैव दिस फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजन एंड एक्सप्लोजिव वेल्डिंग. इसमें फ्रिक्शन से, ड्यू टू फ्रिक्शन एक दोनों सरफेसेस को हम आपस में फ्रिक्शन इन्वॉल्व करते हैं, दोनों को आपस में फ्रिक्शन जनरेट होती है, रब करते हैं, और वहाँ से वो आपका
मेल्टिंग पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं और वहाँ पर वो ज्वाइन हो जाए. सो सिमिलरली सम अदर ऑल्सो कंसेप्ट आर देयर, बट देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल्टिंग और वे कैन से लिक्विड स्टेट में टोटल नहीं जाता है, जस्ट सॉलिड स्टेट में होता है. ओके, सो दिस इज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग. सो इसमें गैस वेल्डिंग इज टोटली हीटिंग, शील्डिंग एंड फिलिंग. This gas welding is total heating, shielding and filling. Resistance welding is what? Heating, and then force is applied, shielding is done, and no filling of material. Filling नहीं होती इसमें. Arc welding में आपका heating is done, shielding is done, and filling is done. Okay, and this new welding also, this heating, shielding and filling. Heating, shielding and filling. Filling may or may not done. फिर इसमें फिलिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ओके, एंड सॉलिड स्टेट में हीटिंग होती है आपकी. हीटिंग नॉट एक्सटर्नल हीटिंग, जस्ट फ्रिक्शन जैसे है, आपस में ही रब हो के आपका जनरेट हो रहा है हीटिंग, उस तरह है. एक्सटर्नल हीटिंग नहीं होती है. अल्ट्रासोनिक में भी हम बार बार अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी में दोनों मटेरियल्स को आपस में रब करते हैं. सो मीन्स एक्सटर्नल हीटिंग नहीं होती है, जस्ट नॉट एक्सटर्नल हीटिंग. हीटिंग होती है इसमें ड्यू टू मटेरियल इटसेल्फ. ओके, ड्यू टू मटेरियल इटसेल्फ. और फिर आपका मेल्टिंग पॉइंट्स क्रिएट होते हैं, और शील्डिंग इस केस में कर सकते हैं हम. एंड फिल अबाउट फिलिंग, कई केसेस में इसमें फिलिंग होती है, कई केसेस में नहीं होती है. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन. एंड दिस all these different welding methods, we have number of welding methods here, then we have number of welding here. These all are classified into two types: this plastic welding or pressure welding, and second one is फ्यूजन वेल्डिंग और नॉन प्रेशराइज्ड वेल्डिंग. एज आई सेड कि आपका या तो हम देखो उसे टोटल मेल्ट करके, लाइक इन दिस डायग्राम, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज आर्क गन, यहाँ से आर्क आ रही है और ये बेस मेटल है नीचे. यहाँ पर देखो बेस मेटल, एज पर दिस डायग्राम इज कंसर्न, वी हैव दिस बेस मेटल. ये क्या आपका बेस मेटल है, यहाँ पर बेस मेटल है, और ये आपकी है यहाँ पर आर्क गन है आपकी यहाँ और इसमें इस पॉइंट पे जो जहाँ टिप है लगी हुई, यहाँ से आर्क डेवलप हो रही है. एंड ड्यू टू दिस आर्क यहाँ पर हीट डेवलप हो रही है और मेल्ट हो रहा है. ओके, सो यहाँ क्या हो रहा है, एक मेल्टिंग होगी और ये मटेरियल मेल्ट हो जाएगा और फिलिंग मेटल भी मेल्ट हो जाएगा, और अपॉन कूलिंग वो मिक्स होके अभी मिक्स हो जाएंगे, फिर अपॉन कूलिंग वो ये मटेरियल आपका फिलअप हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है, शील्डिंग हो रही है और फिलिंग हो रही है. सिमिलरली इन गैस वेल्डिंग ऑल्सो, यहाँ पर हीटिंग करते हैं हम. देखो यहाँ जो हमारा टॉर्च है, सेकंड इमेज इज ऑफ गैस वेल्डिंग सेट, और यहाँ पर आपका बर्नर दिखाई दे रहा है यहाँ पर टिप पे. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका हीटिंग हो रही है, शील्डिंग करेंगे, और आफ्टर दिस कूलिंग, यहाँ पर फिलिंग भी होगी आपकी. सो हीटिंग, शील्डिंग एंड फिलिंग, एंड आफ्टर दिस फिर क्या होगा, आपका कूलिंग होगी और मटेरियल आपका ज्वाइन हो जाएगा. सो एज यू कैन सी देयर इज़ नो प्रेशर इन्वॉल्व हेयर. यहाँ पर हम प्रेशर नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं. सो सच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज कॉमनली नोन एज फ्यूजन वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग. ओके, मैंने आपको बताया था कि ऐसी कौन सी वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस में थोड़ी हमारा प्रेशर लग जाता है. ओके, एंड हम बोलते हैं अदर वेल्डिंग प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, लेज़र बीम वेल्डिंग है, उसमें भी आपका क्या होता है, उसमें कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती है. ओके, सो सेकंड कैटेगरी इज अबाउट दिस प्लास्टिक वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग. इसमें क्या करते हैं, हम मेल्टिंग नहीं करते, हम उसे एक ऐसे एलिवेटेड टेम्परेचर पे लाते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, कि मटेरियल इज बीइंग हीटेड अप टू द टेम्परेचर इन एट विच इट कैन बी इजिली डिफॉर्म्ड इनटू नंबर ऑफ शेप्स. नंबर ऑफ शेप्स में वो क्या हो जाए, डिफॉर्म हो जाए. ठीक है, अब नंबर ऑफ शेप में डिफॉर्म हो जाएगा, फिर क्या होगा कि वो हम उसे वेल्डिंग कसते हैं, आपस में दो मटेरियल्स को हम ज्वाइन कसते हैं. बट इट इन्वॉल्व्स हैमरिंग. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हैमर है, ठीक है, हैमरिंग करने से क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर कर रहे हैं. सो ये मैनुअल हैमरिंग है, हम मशीन के साथ भी कर सकते हैं, एज यू कैन सी इन सेकंड डायग्राम ऑल्सो. यहाँ पर बाय मशीन वी आर प्रेसिंग इट. ओके, यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जैसे आप एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स हेयर, बट नाउ एज यू कैन सी दिस डायग्राम लुक लाइक इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल पीस, बट एक्चुअल में ये नंबर ऑफ पीसेस थे, बट हम बार बार इससे आपस में फोर्स लगाने से ये आपस में एक ही मटेरियल बन गया है. ओके, सो एज यू कैन सी इट इन्वॉल्व्स हीटिंग, बट ये मेल्टिंग स्टेज तक जाएगा. एंड शील्डिंग हो भी सकती है, नहीं भी, अगर हमने मॉइस्चरस नहीं होना चाहिए आपका.
और इसमें फिलिंग आपका नहीं होता है, जनरली फिलिंग नहीं होता है इसमें, फिलिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये मेल्टिंग स्टेज में जाएगा तो फिलिंग की ज़रूरत नहीं होती इसमें. सो इट इन्वॉल्व्स ओनली दिस हीटिंग, दिस प्रेशर, दिस देन फोर्स इज अप्लाइड and then cooling. Okay, so some type of some examples of this pressure welding is forge welding, diffusion welding. फॉर्जिंग भी बोलते हैं हम इसे, जैसे लोहार करते हैं आपके. ओके, सो आई कैन समराइज हेयर दैट अंडर दिस क्लासिफिकेशन वी हैव नंबर ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस हेयर. ओके, and these all processes can be categorized into two types: this plastic welding or pressure welding where pressure is applied, and second one is non pressure welding where no pressure is involved. Okay, so it is up to you, and this is an activity for you. You can here we have number of welding here, so you have to distinguish between the welding processes which involves pressure. यहाँ पर प्रेशर किस में इन्वॉल्व है? देखो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर इन्वॉल्व होता है, सो वी कैन कंसिडर इट हेयर कि प्रेशर वेल्डिंग है. बट ये इसमें हीट भी इन्वॉल्व होती है, तो हीट एज वेल एज प्रेशर हेयर. ओके, एंड लाइक दिस सॉलिड स्टेट में भी यहाँ पर क्या प्रेशर इन्वॉल्व होता है. फ्रिक्शन वेल्डिंग में भी, अल्ट्रासोनिक में भी, अल्ट्राफ्यूजन में यहाँ भी प्रेशर होता है. अब जहाँ पर नॉन प्रेशर इन्वॉल्व हो वो कौन सा? आपके गैस वेल्डिंग हुई, आपकी आर्क वेल्डिंग हुई. ओके, एंड दिस न्यूर इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग मेथड्स. ओके, so let's go to next topic, that is advantages and disadvantages. Okay, advantages and disadvantages of welding over other joining process. Okay, other common joining processes are रिविटिंग कसते हैं हम, कास्टिंग कर सकते हैं. अगर हमने मटेरियल बनाना है तो हम या तो रिविटिंग भी करते हैं, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन डू रिविटिंग हेयर and we can also do casting here. But why we are going to use welding over these two methods? हम casting welding क्यों use करेंगे casting और riveting के लिए? We will study in this topic. Okay, so what are the advantages? We will discuss it one by one. Okay, so first one is as no holes is required for welding, there is no reduction in area, so structural member are more effective in taking load. जैसे रिविटिंग में आप देखोगे यहाँ पर हमें होल करने पड़ेंगे, छेद करने पड़ेंगे. इससे क्या होता है, जो पेरेंट मेटल होता है वीक हो जाता है, उसका नेट एरिया कम हो जाता है तो वीक हो जाएगा. बट वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता, ये तो ऐड करता है मटेरियल को, सो इसकी जो लोड टेकिंग कैपेसिटी वो बनी रहती है और इंक्रीज होती है और इफेक्टिव रहती है. ओके, सो फर्स्ट इज द एडवांटेज. सेकेंड वन इज इन वेल्डिंग फिलर प्लेट्स, गस्ट प्लेट्स, कनेक्टेड एंगल्स एटसेट्रा आर नॉट यूज्ड, विच लीड्स टू रिड्यूस ओवरऑल वेट ऑफ स्ट्रक्चर. इसमें वेल्डिंग में जस्ट वेल्डिंग पोर्शन होता है. इसमें जैसे अदर वेल्डिंग फिलर प्लेट्स, जैसे कई बार रिफ्टिंग में हमें एक और प्लेट्स, कवर प्लेट यूज, आप मशीन डिज़ाइन में पढ़ा होगा आपने, फिलर प्लेट्स यूज़ होता है, फिलिंग प्लेट्स होता है, टॉप फिलिंग प्लेट्स, बॉटम फिलिंग प्लेट्स, ताकि वो लीक प्रूफ रहे. सो वो यूज़ होती हैं. सो उससे क्या होता है, ओवरऑल जो वेट होता है स्ट्रक्चर को इंक्रीज़ होता है. लाइक दिस डायग्राम, यहाँ पर भी आप देख रहे हो एक प्लेट यूज़ हुई है ताकि ये लीक प्रूफ रहे. ठीक है, बट अब क्या है कि अब वेल्डिंग में ऐसा कुछ यूज़ नहीं होता है, सो ओवरऑल स्ट्रक्चर का वेट जो रहता है वो हमारा कम ही रहता है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ वेल्डिंग जॉइंट्स आर मोर इकोनॉमिकल एज लेबर एंड लेस मटेरियल इज रिक्वायर्ड. अब क्या है आपका कि वेल्डिंग में अब इतना हमने काम नहीं करना है, ना होल करना है, ना हमने प्लेट लगानी है, और ना उसमें प्रेशर लगाना है, हमने हीटिंग नहीं करनी है हमने. सो लेस लेबर इज रिक्वायर्ड, लेस मटेरियल इज रिक्वायर्ड, इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल. ओके, और एक यहाँ पर पॉइंट कि the efficiency of welding joint is more than rivet joint. Efficiency means कि जो पेरेंट मेटल का जो मटेरियल पहले था आपका, मतलब इससे मीन्स टू से एफिशिएंसी हेयर मीन्स कि लोड टेकिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस नहीं होती है वेल्डिंग से. सो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा ही रहती है रिवेटिंग से. रिवेटिंग में क्योंकि होल हो जाते हैं, होल हो जाने से मटेरियल वीक होता है, वीक होने से उसकी लोड टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो इस वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट मेटल होता. बट वेल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है, तो एफिशिएंसी ऑफ वेल्डिंग जॉइंट इज़ मोर. ओके, और वेल्डिंग हम बल्कि पार्ट्स में कर सकते हैं इजीली, बट रिवेट पार्ट्स में हमें बिल्कुल आपस में शीट्स ही चाहिए होती है, तभी हम कर पाते हैं. ठीक है, वेल्डिंग हम बल्कि पार्ट्स में भी कर सकते हैं. एंड द स्पीड ऑफ वेल्डिंग फैब्रिकेशन इज़ फास्टर, क्योंकि आपने जस्ट एक इलेक्ट्रॉन आपने आर्क, जैसे लाइक आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, दे आर वेरी स्पीडी ऑपरेशंस. ठीक है, वो स्पीड है आपके. अब अदरवाइज़ हम चाहे आप कास्टिंग कर लो, कास्टिंग में इट इन्वॉल्व्स मेल्टिंग, पहले कास्टिंग में भी पहले मेल्टिंग होगी, फिर हम उसको मोल्ड्स में पोर करेंगे, फिर कूलिंग करेंगे, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम. सिमिलरली इज इन
रिवेटिंग ऑल्सो, आप पहले इसमें होल करोगे, फिर उसके रिवेट प्रेस करोगे, रिवेट हेड उसको मोल्डिंग में डालोगे, फिर रिवेटिंग करोगे, मतलब इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम. सो एज कम्पेयर टू दोज टू joining methods, the welding process is more speedy. Okay, and we have number of one more is no noise in produced during welding as compared to riveting. We can say no noise is produced. riveting में आपकी हैमरिंग होती है तो फिर riveting में आवाज़ होती है, और welding में as compared to that there is no noise. Okay, and any space of joint can be moved. So these are we can say these are 11 points which helps us to understand that welding is having many advantages over this riveting method and casting method. Okay, so here we have this welding method, welding, and here we are with riveting rivets. Okay, so next is as you can see, every coin has two sides, one is tail and one is head. So even welding is having some disadvantages. Okay, let's talk about those disadvantages here. वेल्डिंग जॉइंट्स आर मोर ब्रिटल, देयरफॉर देयर फटीग स्ट्रेंथ इज लो. वेल्डिंग जॉइंट क्या होता है, ब्रिटल होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं. मीन्स ब्रिटल होता है मतलब एकदम से टूट जाता, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती, क्रैक्स हो जाते हैं, उसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं, तो डक्टाइल नहीं होता है वो. ओके, सो second is due to uneven heating and cooling of member during welding, the members may distort resulting in additional stress. अब क्या होता है, जैसे हम हीटअप करते हैं उसे, फिर ठंडा होता है, देन हीटअप एंड देन ठंडा. सो दिस कूलिंग एंड हीटिंग, दिस हीटिंग एंड कूलिंग, उससे क्या होता है, मटेरियल में स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं एंड दे मे रिजल्ट इन एडिशनल स्ट्रेसेस. ओके, एंड देन नेक्स्ट इज स्किल्ड लेबर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग. स्किल्ड लेबर चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. एंड नेक्स्ट इज नो प्रोविजन फॉर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन is kept in welding connection, and therefore there is possibility of cracks. Here we have cracks. क्या होता है कि हीटिंग करते हैं हम, कूलिंग करते हैं, अब वहाँ पर एक्सपेंशन के लिए कोई जगह नहीं होती है ना उसमें, मतलब वी कैन से कि जैसे फिलिंग हो रही किसी पार्ट की, कुछ गैप फिलअप हो रहा है ड्यू टू वेल्डिंग. अब यू नो वेरी वेल कि मेटल का टेम्परेचर पे काफ़ी इफेक्ट रहता है. सो अगर वो मान लो कम टेम्परेचर में हो जाए ड्यूरिंग विंटर्स, हाई टेम्परेचर में हो जाए ड्यूरिंग समर्स, सो वो गैप वैसा का वैसे ही रहेगा, मतलब गैप की कोई एज यू नो इट इज़ ब्रिटल मटेरियल. क्या होता है वो वेल्डिंग मटेरियल, क्या होता है ब्रिटल, तो वो एज पर डिमांड वो नहीं एडजस्ट होगा, उसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे. ओके, सो देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैक्स. ओके, देन डिफेक्ट्स लाइक इंटरनल एयर पॉकेट्स, लैग, इंक्लूजन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. अब क्या होता है उसमें डिफेक्ट काफ़ी ऐसे डेवलप हो जाते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम नेक्ड आइज. अपनी आंखों से हम देखना बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसे एयर पॉकेट बन जाना, स्लैग इंक्लूजन हो जाना, वो इजीली नहीं हो पाते. तभी हम ट्राई तो करते हैं हम उसको शील्डिंग से अवॉइड करने की, बट इवन दो आफ्टर शील्डिंग ऑल्सो we possesses, we have those defects. Okay, so but it is not difficult to have rectify them also, so easy नहीं होता है. Okay, so this is all about this advantages and disadvantages. Okay, then okay, thank you.